Hello students, welcome back to Biochem Academy. So today we are going to see a topic of biology, that is tissue. Yes, cell divides and increases number and combines together to form tissue to organ system. So here I am representing tissue part 1. We will see the types of tissue, that is plant tissue and animal tissue, and in that division. So I have made a simplified table here, as you can see. Let's get started then. Cell divides to form tissue to organ system. We know this. So here we are going to elaborate the topic tissue. Okay. Usually tissues is of two types. That is plant tissue and animal tissue. Okay. So tissue के अंदर दो major division. Plant के अंदर tissue है called as plant tissue and animals के animal tissue. So this whole chart is of plant tissue. Okay. Plant tissue के अंदर type देखेंगे उसके पहले we will see animal tissue. Animal tissue is of four types. Animal tissue is broadly classified in four major categories. That is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. इसके अंदर भी बहुत सारे types है. इसमें 6 type, 8 types, 3 types and no type. So this I will be teaching in next lecture, that is part 2. Part 2 में देखेंगे हम लोग इसके ऊपर in depth detail. Okay, बोर्ड भी छोटा था and एक साथ इतना बर्डन नहीं करना था. Hence I kept this aside for some time. So let's start with plant tissue. Plant tissue is basically divided in two groups. Okay, कौन से दो groups है वो? Meristematic tissue and permanent tissue. Okay, meristematic tissue का मतलब है constantly dividing tissue cell. That is also called as growing tissue. Okay, the new cell which comes, divides and forms other cell. Okay, meristematic tissue is also called as growing tissue. It is present in the growing parts of plant. जो भी जहां पे भी ग्रोथ हो रहा है प्लांट के अंदर, वहां पे ऊपर टिप पे अगर आप देखोगे कुछ सेंटीमीटर्स में, तो यू विल फाइंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटर ऑन जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी, सो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इटसेल्फ इन परमानेंट टिश्यू. एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हुआ, आफ्टर दैट इट लूजेस इट्स डिवीजन कैपेबिलिटी. डिवाइडिंग कैपेबिलिटी वो लूज कर देता है परमानेंटली. Okay, the meristematic tissue forms permanent tissue. Permanent is matured and growth cell which forms a tissue. ठीक है, let's explore meristematic tissue. These are the new dividing cell. किसमें help करता है? Helps in growth. These are the constantly dividing cell. Meristematic tissue is of three types. That is apical, empty is meristematic tissue. Apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. Now apical apex पे रहेगा, टिप पे रहेगा. It is present at the growing tip. किसके? रूट एंड स्टेम. तो रूट एंड स्टेम किसकी वजह से ग्रो होता है? मेरिस्टेमेटिक. कौन सा? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इंटर मतलब बीच में, है ना? ओके, मिडल. सो कहाँ पे है ये? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड एट इंटरनोड. इंटरनोड ब्रांचेस में लीफ आते हैं, तो दो लीव्स के बीच में जो पार्ट रहेगा, ओके, नोड्स के बीच का पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरनोड. नेक्स्ट इज अ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ सम बिग ट्री लाइक banyan tree. ओके, banyan tree, सपोज आई एम सीइंग banyan tree टुडे, बहुत बड़ा है. सपोज कंसिडर करो उसका जो बाग है उसका साइज इतना, दिस मच. ओके, इतना थिक है. After 2 years when I am visiting same place to watch that tree, of course banyan tree की lifeline बहुत लंबी होती है. So will I see some changes? Yes. क्या changes हो गए? उसका बाग का साइज बढ़ेगा and tree will be huge, है ना? So बाग का साइज 2 साल पहले कितना था? इतना. So after 2 years it will be something this much. मतलब बढ़ा ना, that is increase. उसका diameter बढ़ा, girth बढ़ा. So who is responsible for increase in girth? That is lateral meristematic tissue. ओके, देखो पहले इतना था साइज, सपोज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसका साइज बढ़ गया बाग का. हु इज रिस्पॉन्सिबल? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम. क्या बोलते हैं? कैम्बियम. ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री, दैट इज डायमीटर. तो दिस मच वाज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ लेट्स कम टू परमानेंट टिश्यू. Permanent tissue is further classified in two types, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Let's explore simple permanent tissue.
डिफरेंस क्या है दोनों में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में? सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल and complex permanent tissue is made up of more than one type of cell. Okay, let's start. Okay, see, it is made up of one type of cell. Simple permanent tissue is of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. कौन से ये? parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Let's check out parenchyma. This is the diagram of parenchyma. If you take a cross section, transverse section of parenchyma and observe under microscope, so you will find some this structure. कैसा है इसका wall? Thin wall. It is loosely packed. If you check out closely, तो दो सेल के बीच में स्पेस है ना? देखो ये स्पेस, this space called as intercellular space. तो intercellular space is present in parenchyma. ठीक है? मेजर फंक्शन क्या है पेरेंकाइमा का? स्टोरेज ऑफ फूड. जहां पे भी पेरेंकाइमा है उसका फर्स्ट फंक्शन इज फूड स्टोरेज. ओके, स्टोर हाउस ऑफ फूड कौन करता है? पेरेंकाइमा. एंड बाद में वो मैकेनिकल सपोर्ट या सपोर्ट देने का काम करता है प्लांट को. सपोज अगर पेरेंकाइमा ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है मतलब उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है मतलब इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड. ओके, तो इफ पेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, तो उसका नाम चेंज होकर हो जाएगा क्लोरेनकाइमा. क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल. देखो नाम मैच करे, क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा. ठीक है. देयर आर मेनी एक्वेटिक प्लांट्स. बहुत प्लांट्स हो गए लेक पॉन्ड्स में ऊपर फ्लोट करते हैं. तो ये फ्लोटिंग कैपेसिटी क्यों आती है उसको? बिकॉज उसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट के अंदर, जो उसको ब्यूएंस प्रोवाइड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट कंसिस्ट ऑफ एयर कैविटी टू फ्लोट ऑन वाटर. उसका नाम चेंज हो जाएगा एरेनकाइमा. एयर है ना, सो एरेनकाइमा. देखो एयर प्रेजेंट है तो एरेनकाइमा. ठीक है. तो फर्स्ट वॉज पेरेंकाइमा. पेरेंकाइमा में दो टाइप, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा. प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, विंड ब्लो की वजह से जो प्लांट मूवमेंट दिखाते हैं, या आपने पुल किया ब्रांच को छोड़ दिया, सो इट शोज अ मूवमेंट. हाँ, ज्यादा जोर से पुल किया या बेंड किया तो इट ब्रेक्स, बट हल्का सा खींचा तो टूटता नहीं हो. वाई? वो विस्टैंड करने की कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इजी बेंडिंग, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. कहाँ पे मिलेगी ये? एपिडर्मिस ऑफ लीफ. एपी मतलब ऊपर, ऊपर के लेयर. एपी अप, डर्मिस इज द स्किन लेयर. ओके, एपिडर्मिस. If you check out the collenchyma in microscope, transverse section like of parenchyma, you will observe something like this. So यहाँ पे देखा हमने दो सेल के बीच में स्पेस थी, मीन्स parenchyma has intercellular space, बट collenchyma के बीच में देखो सेल के बीच में स्पेस नहीं है. देखो ये ब्लैक कलर से फिल हो गई है. ओके, सो उसके कॉर्नर्स एंड स्पेस थिकन होते हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन. ओके, कंपोनेंट होता है वो वहां पे डिपॉजिट होता है, बिकॉज ऑफ विच उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होती है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस. ओके, द थर्ड टाइप इज स्लेरेनकाइमा. स्लेरेनकाइमा डेड सेल. तो पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा दे आर लिविंग. पेरेन, कोलेन एंड स्लेरेनकाइमा, ये तीन में से लिविंग इज पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा. तो जो डेड है वो कौन है? स्लेरेनकाइमा. डेड है तो इसके प्लस पॉइंट क्या है? सेल को मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उसको फूड नहीं चाहिए, मतलब फ्री के अंदर वो प्लांट को हेल्प करेगा. यस, कैसे हेल्प करेगा वो? एनी आइडिया? इट प्रोवाइड टफनेस, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है वो. ओके, स्लेरेनकाइमा इज डेड. इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. वॉल इज थिक. अगर ये वॉल देखोगे ना आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर, टीएस का, एलएस टीएस का, दिस इज द एलएस lateral section, that is a longitudinal section. Okay, so it is empty and it has thick wall. Okay, thick wall किसकी है? Thick lignin. Lignin एक component है, chemical component. This lignin gives it tough nature. Okay, जो toughness है वो कौन प्रोवाइड करता है? lignin. ठीक है. सीड कवर, सीड के ऊपर का कवरिंग देखोगे तो बहुत हार्ड होता है. देन कोकोनट का हस्क. ओके, कोकोनट के ऊपर से जो निकलता है ना, समथिंग फाइबर लाइक हस्क बोलते हैं उसको, वो किसका बना होता है? स्लेरेनकाइमा का. ठीक है. तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा. द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, द सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. क्या है ये?
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या डिफरेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स में? सिंपल इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ओके, सो लेट मी कम दिस साइड. इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. देखते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है? फ्लोएम एंड जाइलम रिस्पेक्टिवली. वाटर एंड मिनरल अपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू रूट्स, कौन हेल्प करेगा? जाइलम. कितने सेल्स का बना है? 4 सेल्स, 4 कंपोनेंट. फूड जो लीफ बनाएगी एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ प्रिपेयर्स फूड, उसको ट्रांसपोर्ट करना है किसके थ्रू होगा? फ्लोएम. ओके, जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. कौन से डायरेक्शन में सर? यूनी डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है. फ्लोएम, फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. बट कौन से डायरेक्शन में सर? मल्टी डायरेक्शन के अंदर. बिकॉज प्लांट के अंदर जहां जहां भी लिविंग सेल है, रूट है, स्टेम है, या टॉप मोस्ट पोजीशन बोलो, बाग बोलो, मिडल पोजीशन, कहीं पे भी बोलो, जहां जहां लिविंग सेल है, फूड चाहिए. ऑफ कोर्स यस, मेंटेनेंस के लिए फूड तो चाहिए, तभी सेल जिंदा रह पाएगा, और एल्स सेल विल डाई. सो मल्टी डायरेक्शन के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करता है ये फ्लोएम. जाइलम यूनी डायरेक्शन, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन. नाउ जाइलम के 4 कंपोनेंट, 4 टाइप के सेल कौन से? जाइलम पैरेन्काइमा, एक्स मतलब जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड एंड वेसल. फ्लोएम के 4 सेल कौन से? पी मतलब फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. See, usually phloem is made up of 5 component, that is CU element, CU cell नाम का एक एलिमेंट कंपोनेंट होता है. It is not present here because CBSE के अंदर और महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर you will see only 4 types of cell. कॉलेज सेक्शन के अंदर it is 5 type. So I am just showing you this 5th type of cell, that is CU element और CU cell. ठीक है. Now function, पैरेन्काइमा आया मतलब फूड स्टोरेज. तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोरेज एंड साइड वे वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज. फ्लोएम अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है खाना, बट खुद को भी तो फूड चाहिए कि नहीं, तो अपने लिए भी स्टोर करेगा वो, फूड स्टोरेज. जाइलम फाइबर, फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट. फ्लोएम फाइबर क्या काम करेगा? सपोर्ट. बट सर जाइलम एंड फ्लोएम तो वाटर मिनरल एंड फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बाकी के 2 कंपोनेंट बचेंगे ना, वो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन के. ट्रैकिड्स एंड वेसल. ओके, तो ये जो वाटर एंड मिनरल अपटेक करना है अपर डायरेक्शन के अंदर, वो कौन करता है? ट्रैकिड्स एंड वेसल. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा है दोनों का? ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट सीयू ट्यूब, ट्यूब्यूलर होता है ये. कंपेनियन सेल हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन. दिस इज ट्यूब्यूलर विथ परफोरेटेड मतलब होल्स वाले वॉल, परफोरेटेड वॉल, बोथ हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्ट. ओके, तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैकिड एंड वेसल, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. ठीक है. नाउ ये चारों सेल में से दोनों में कौन लिविंग कौन डेड? तो जाइलम के अंदर सिर्फ एक ही लिविंग है, ओनली वन लिविंग, रेस्ट 3 आर डेड. यस, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, रेस्ट फाइबर, ट्रैकिड एंड वेसल्स आर डेड. देखो, डेड डेड. ठीक है. एंड फ्लोएम के अंदर लिविंग कितना है? 3 लिविंग 1 डेड, इसका ऑपोजिट. तो कौन से लिविंग है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. तो डेड कौन है सर? फाइबर. देखो फाइबर दोनों में डेड है, बिकॉज फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, टफनेस देता है वो. ओके क्लास, सो दिस वाज होल प्लांट टिश्यू. जस्ट चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है. Like as every lecture I will say that prepare a note or A4 size paper में लिख लो. Just pause this video and write it down. Okay class, so hope you have written this, or else also you can take a screenshot or just download it. जब भी देखना you can have a look. तो part 2 के अंदर we are going to see these 4 types of animal tissue, जो इससे भी बहुत बड़ा चार्ट है, बट विल सिंप्लीफाई टॉपिक्स, नो नीड टू वरी. जस्ट थिंक यू हैव टू डू इज रिवाइज कॉन्स्टेंटली, डू रिटन प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है.
अभी से प्रैक्टिस करोगे, so you'll be prepared for your exams and boards and you can score well. Okay class, so now I have decided something different. जितने भी हमारे टॉपिक्स हुए, I will be preparing a test paper. What I will be doing is, suppose the next test will be after a few days, I will let you know. That is a cell का part 1 बायोलॉजी जो हमने इसके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था. ओके, आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑन इट. हाउ? आई विल जस्ट नोट डाउन एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, एंड जस्ट यू हैव टू स्टार्ट वीडियो, पॉज इट and you have to try to answer it or write it down, your answer, and after few minutes I will be also providing you answers of it after some time. या pause कर लेना वीडियो, आंसर दिखना मत, just compare it, check out. tricky questions भी रहेंगे, you will enjoy it, so don't miss that video. And if you like this video, do like, share with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.